Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with SST gradually and slowly. We have completed 3 chapters. It's very good, very encouraging children, because history, the chapter that we have completed, French Revolution, it was quite a big chapter. Big chapter with a lot of learning experience, lot of informations that were there. It has made us understand the history of France in detail. इसके बाद हमने geography पढ़ी. We started geography where we understood about our country, India. We must feel proud about. Yes, being an Indian is a matter of pride. Where we understood that the beauty of India, the physiographic division of India, the natural beauty of India is a big gift that God has bestowed on us. हमारे ऊपर भगवान की ये बहुत बड़ी कृपा रही है कि ये गिफ्ट हमको मिला है. And after understanding, first we understood about India's location on the international arena. Internationally, India कहाँ पे positioned है? Where is it positioned? And then the complete division, Himalayas. We had a long tour of India. You have to see it as if that you are going around India. Okay, the tour that is happening all around India, that was a great experience that is there. Okay, so after understanding these 3 chapters, today what we are doing is, children, we are starting the first chapter in political science. 4 books are there. We need to touch and we need to understand facts from each and every book. So now, being an Indian and staying in India, the biggest democracy of the, yes, children, I hope you all know that India is the biggest democracy in the world. जितना right यहाँ पे एक आम आदमी को मिला हुआ है, the kind of rights and privileges a common person enjoys in India, it is nowhere available. दुनिया के और किसी देश में ये नहीं है. Okay, so very nicely we are understanding. First, we will be talking about democracy. पहला तो हमको ये देखना है, when we are talking about democracy, the complete explanation of democracy has been given with the help of a conversation in a class. कि ये जैसे हमारी क्लास चल रही है, the way we are carrying on with our class. Of course, these videos, consider it as your classes only, children. And while you are watching these videos, please don't think that this is a video. This is a class, dear students, and in this class, important points are discussed. I suggest and recommend and request you all to note down these details. ये सारी details जो है ये note down किया कीजिए, which we are discussing while the classes are proceeding. बीच बीच में बहुत सारी पॉइंट्स बताती हूँ, this is important, this is important. तो जो important मैं बता रही हूँ उसको then and there नोट कर लो. ओके, डोंट वेट कि वो मैम क्लास में बताएंगे. अरे वीडियो, दिस इज ऑल्सो माई क्लास ओनली गोइंग ऑन ना. आई नो यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वॉचिंग माई वीडियो, so you should know what am I teaching and what is the procedure and what is the methodology. तो अगर मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, if I am giving you some factual thing, please do note it down. Got it? That is there. And now we are talking about democracy. So democracy from the student's point of view and from the teacher point of view, this conversation is there. This I will be showing it to you, this conversation, complete conversation at the end of the chapter, at the end of the video I would be discussing, so that you should know about each and every point from the chapter. कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए. Nothing should be left. Okay. So there is similarities, there is differences. But a lot of governments are there where a lot of similarities are there, a lot of differences are there. So सबसे पहली चीज, one thing which defies democracy in a very simple manner is that it is a form of government in which the rulers are elected by the people. Most important thing, हम democracy तभी मानेंगे, we will be considering a country as democratic country when the rulers are elected by the people. Am I clear? So
फर्स्ट डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन मिलेंगी आपको इसमें डेमोक्रेसी के लिए, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ government in which rulers are elected by the people. अब आप कहोगे मैम दिस इज नॉट अ न्यू डेफिनेशन, ऑफ कोर्स 6th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, अभी तो 9th क्लास में आ गए, ठीक है। सो यू नो द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ये लेकिन स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट दिस चैप्टर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज द मेजर थिंग, ये जो इलेक्शंस होते हैं where the rulers are elected by the people, this is one of the major points that is separating democratic country from a non-democratic country. Non-democratic countries में elections नहीं होते हैं, so it's not democratic. कहने को बहुत सारी many countries are there, every country wants to claim कि we are democratic, लेकिन in reality ऐसा नहीं। अब जैसे कि army rulers are there in Myanmar, they were not elected by the people. Army rule जहां हो जाता है, army rule में people are not elected. So एक चीज जो यहां समझ में आ रही है, elections are most important feature of any democracy. किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में ना इलेक्शंस होना जरूरी है। व्हेन द रूलर्स डिक्लेयर कि हाँ वी आर द रूलर्स एंड वी डू नॉट कंसिडर एनीवन एज इम्पोर्टेंट, तो क्या होता है कि इट इज नॉट डेमोक्रेटिक, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी इज अ मैटर ऑफ प्रिविलेज। सबको ये प्रिविलेज नहीं मिलता है, बहुत बड़े फायदे की बात है व्हेन यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। क्या होता है, द पीपल हु आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द आर्मी, द आर्मी बिकम्स द रूलर ऑफ द कंट्री। व्हेन आर्मी declares its rule in a country, then it is not democratic. फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रह जाती है। लेकिन लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, बाहर की कंट्रीज में वो भी यही दिखाते हैं कि डेमोक्रेटिक है, आर्मी रूल है, in practice it is an army rule, but they show to the other parts of the world कि we are democratic. Like there was dictator like Pinochet was there who was not elected. Dictators were there. अभी आप आगे chapters में पढ़ेंगे, in history we will be talking about Hitler, the greatest dictator of the world. कभी भी उनके जैसा कोई dictator नहीं हुआ, there was no dictator like him. डेमोक्रेटिक सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करके जर्मनी में he established his own rule, his dictatorship. अब क्या होता है, जैसे कि अभी भी there are countries which are not democratic. This applies to monarchy also. In monarchy system, also democratic principles are missing. अब एग्जाम्पल यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे सऊदीया का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, सऊदी अरेबिया। जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड ना, मोनार्कीज आर देयर, दे रूल, क्योंकि पीपल हैव पीपल ऐसा नहीं है, दे आर रूलिंग नॉट बिकॉज दे आर चोजन बाय द पीपल, दे आर बोर्न इन द रॉयल फैमिली।
Saudi Arabia, rulers are ruling because they are born in that family. उसी फैमिली में वो पैदा ही हुए हैं, तो वहां पे इलेक्शंस नहीं है. जो फैमिली है, द फैमिली दैट इज रूलिंग, इट वुड बी रूलिंग ऑल थ्रू द लाइफ. लेकिन व्हाट हैपेंस इज दैट, यहां पे एक चीज जो समझने वाली है कि रूलर्स आर देयर, दे आर रूलिंग, लेकिन कितनी बार क्या होता है कि पीपल डोंट अपोज देम, उनको लोग अपोज नहीं करते हैं. दे रेस्पेक्ट द रूलर. वो अपने राजा की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, वो राजा को बहुत अच्छे से जानते हैं. ठीक है. सो डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, लेकिन ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट इज देयर, it is holding an election. Every democratic government holds election. वापस से जब हम इस डेफिनेशन पे आते हैं, दिस इज देयर, एक तो हमने देख लिया. अब जैसे कभी क्वेश्चन आता है, समटाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड विच आर द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अदर देन डेमोक्रेसी. ठीक है, विच आर द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अदर देन डेमोक्रेसी. अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो किस तरह की गवर्नमेंट है. एक हमने देखा आर्मी रूल. ठीक है, Army declares itself as the administration, it declares itself as the ruler, और जो जैसा आर्मी कहेंगे आर्मी की ही बात माननी पड़ती है. Then there are rulers, still there are rulers. हमारे यहाँ में तो अभी राजा महाराजा वाला सिस्टम खत्म हो गया. There is no king. The kings have also become ministers, and they are also participating in the elections by if you are a ruler. What happened is when India got independence, many rulers were feeling very bad. यार अब हमारा राज खत्म हो जाएगा. देन द गवर्नमेंट, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ही कन्विंस द पीपल, क्यों आपका रूल खत्म हो जाएगा. दे सेड कि आपका रूल रहेगा, बस खाली फॉर्म चेंज हो जाएगा. यू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, इफ द पीपल लाइक यू दे विल वोट फॉर यू. आपके लिए वोट करेंगे. आप वापस से द मिनिस्टर्स हु आर देयर, दे आर वेरी पावरफुल पीपल, उनके पास बहुत पावर होता है. एज गुड एज किंग, हो सकता है किंग से ज्यादा पावर हो, लेकिन यही है कि अत्याचार नहीं कर सकते. दे कैन नॉट डू देयर मनमानी. मनमानी नहीं कर सकते हैं. लोगों का ध्यान रखना ही है, लोगों की बात माननी ही है, और उसी तरह से रूलिंग चलानी. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक. नाउ व्हाट हैपेंस कि अभी आगे भी हम पढ़ेंगे, वी विल बी रीडिंग चैप्टर 3 जो है कि एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, whole country, every country wants to say that they are democratic. Okay, so democratic government में there has to be some important characteristics, there has to be some important features. Democracy, ये explanation is there. This is explaining democracy because where army rule is there, elections are not held. Where the king's rule is there, elections are not held. Elections compulsorily is happening in democracy. Got it? So, what is democracy? This is democracy. क्यों होना चाहिए? Why? Why it should be there? This is also the question in the chapter itself. So, ये अब हम करेंगे. इसको प्लीज समझने की कोशिश करो that there are some important features of democracy. हम किस बेसिस पे, on what basis are we considering a country as a democratic country? तो rulers are elected by the people, ये तो हो गया. इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ये डेफिनेशन तो हमको पता है. We know the definition of this democratic system. The question comes is, who are the rulers? भाई हम इलेक्ट तो करेंगे, लेकिन ये रूलर्स कौन है? Which officials must be elected by any government to be called a democracy? Which officers must be elected? किन ऑफिसर्स को हम इलेक्ट करेंगे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो हो रहा है?
we are practicing democracy. And if there are some people who are not elected, there are some people who are very powerful. So what decisions are taken by non-elected officials? What decisions are taken by non-elected officials? अरे everybody who has been elected खाली वही थोड़ी country चलाएंगे. They are not the only people who will be running the country. There are other people also जो कि उनको assist करेंगे, who would be guiding them in running the country. Yes, it happens. हमारे जितने भी ministers हैं, all these ministers, they are all assisted by the IAS officers. IAS officers are the people जो पढ़ लिख के इतने बड़ी पोजीशन पे पहुंचते हैं. They reach to such high positions and are very powerful. They are occupying so much of power on the basis of their qualifications and on the basis of their quality. अब elections तो होंगे. क्या elections would be by everybody or by selected people? Before elections were happening before 1947 also. Yes, dear students. लेकिन that was by very selected people. The people who जिसको Britishers decide करते थे, only they can vote. Got it? Limited voting was there. Limited category of people can only vote. Everybody did not get, voting right is a very big right. अभी French government में हमने पढ़ा ना, how much, sorry students, how much people have to struggle to get a right to vote. कितनी जाने गए. उसमें भी women are kept as passive citizen. I'm just citing the example. थोड़ा सा example. So voting right is a big right. So what kind of elections constitute democratic? What kind of elections are democratic? What kind of elections are called democratic elections? किस तरह के इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक मान रहे हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके ऊपर की पूरा system is based, democratic system is based, that who are the people who can elect the rulers to get elected as rulers? Who are the people who elect the rulers? ये कौन लोग हैं जो रूलर्स को इलेक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे, एंड व्हाट कैन द रूलर्स डू देयर मनमानी? कैन द रूलर्स टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन? Rulers take decision on their own. अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, एक चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिगेस्ट क्वालिटी. ये तो यहां मेंशन नहीं है ना, लेकिन ये चीज जो मैं बता रही हूं, व्हाट आई एम सेइंग इज इट कैन नॉट बी मेंशन्ड हियर बिकॉज that is what is defining or giving us the clear meaning of democracy. That the rulers are always under the control of the common people. कंट्रोल रहता है उनकी हर एक एक्टिविटीज के ऊपर. द रूलर्स कैन नॉट बिकम एक्सट्रीमली पावरफुल. भाई रूलर्स हैं तो कुछ तो पावर मिलेंगे, लेकिन दे कैन नेवर बिकम सो पावरफुल दैट दे डू देयर मनमानी. आई एम यूजिंग द सिंपल वर्ड. मनमानी करने की छूट किसी को नहीं है डेमोक्रेसी में, किसी को. बिलीव मी चिल्ड्रन, पब्लिक सर्वेंट्स आर देयर. पब्लिक सर्वेंट मैं किसको कह रही हूं? आई एम टॉकिंग ऑफ द IAS ऑफिसर्स.
दे आर कॉल्ड एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, पब्लिक की सर्वे, आम आदमी की सेवा के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। दे कैनॉट डू इनजस्टिस टू द कॉमन पीपल। गॉट इट? दैट इज देयर। अब वो जो क्लास वाला कॉन्वर्सेशन था ना, विच हैड स्टार्टेड with the explanation and the confusions and the discussions on democracy, let's see that. उसको देखते हैं, वो conversation देखना बहुत जरूरी है। Got it? Come, let's see that. So students, ये नया चैप्टर हमने शुरू किया है, what is democracy, why democracy, and we have understood about some definitions of democracy and some major criterias that are defining democracy. जो चीज़ें डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बता रही हैं, हमको उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझना है। तो आई टोल्ड यू देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन ऑफ अ टीचर विद स्टूडेंट्स। टीचर का अपने स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन होता है। लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिक क्वेश्चंस आर देयर रिगार्डिंग डेमोक्रेसी विच द स्टूडेंट्स आर आस्किंग टू मटिल्डा लिंगदो। मटिल्डा लिंगदो, ये इट माइट बी अ स्कूल इन असम और उधर नॉर्थ ईस्ट के तरफ ऐसे लोगों का इस तरह की टाइटल होती हैं। सो शी इज़ हियर, मेरी सिंह। अब कॉन्वर्सेशन शुरू होता है। द कॉन्वर्सेशन स्टार्ट मेरी सिंह, आई लाइक दिस आइडिया। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम, पहले डेमोक्रेसी के बारे में विल डू द डिस्कशंस एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। हाउ कम इज इट पॉसिबल? Will we find the meaning of democracy? So she's saying कि I mean logically shouldn't we have approached it the other way around? मेरी इज गेटिंग, अभी आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आएगा ना कि डेमोक्रेसी का हम सारी चीज़ें, इतना कॉन्वर्सेशन और इतना एग्जाम्पल्स की क्या ज़रूरत है? वाई डोंट वी डायरेक्टली डिस्कस अबाउट डेमोक्रेसी? तो शुडंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल? पहले एग्जाम्पल दिया गया है, उसके बाद मीनिंग बता रहे हैं। तो ये क्या है? जस्ट सी, इट इज़ मेंशन्ड हियर ना about democracy. Now madam is saying, madam has to answer the question of query of the student. I can see your point. मैडम कह रहे हैं कि आई कैन सी योर पॉइंट, लेकिन दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरीडे लाइफ। रोज़ हम इस तरह की सवालों के बारे में नहीं सोचते हैं। वी यूज़ वर्ड्स, हम डेली अभी अभी जैसे कि आई एम थिंकिंग अबाउट इट द मॉर्निंग टाइम एंड अभी होल डे इज़ देयर, कुकिंग करनी है, वीडियो बनाना है एंड ऑनलाइन क्लासेस विल बी स्टार्टिंग दिस। देखो दीज थिंग्स, am I thinking about democracy and am I thinking about, try to understand, these are the concepts that we do not use or we do not talk in a daily way, daily basis. तो इसका डेफिनेशन के लिए बिफोर वी यूज देम, इसका डेफिनेशन होना चाहिए। थिंक अबाउट इट। ओके, शी इज़ वेरी राइट। डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स? इट इज़ ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। कुछ वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं ना, जैसे कि पेन है, रेन है, लव है, ये जब हम देखते हैं अपनी आँखों से तभी समझ में आता है। इट्स अ फीलिंग। इन द सेम वे हमको ये समझना है कि डेमोक्रेसी का मतलब नस नस में बैठाना है कि वी नो एंड वी अंडरस्टैंड कि यस, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम रह रहे हैं एंड वी नीड टू बी वेरी प्राउड ऑफ दैट। ओके, सो लिंगदो मैम, मेरी ने कहा, लिंगदो मैम ने कहा, अभी मेरी कह रही है, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल? डेफिनेशंस की ज़रूरत ही क्या है? ठीक है, कि अगर एग्जाम्पल से ही आप समझाना चाह रहे हो तो इट्स ठीक है, जॉली वेल गिव द एग्जाम्पल्स ओनली। Why are you telling us to remember the definition and why are you giving us the definition? Just let's sort it out with the help of example. तो लिंगदो मैम इज सेइंग कि डेफिनेशन यही होता है जब वी अंडरस्टैंड। अभी टू क्लास के बच्चे को या 1 क्लास के बच्चे को समझाऊंगी डेमोक्रेसी तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन पेन मैं उसको दिखाऊंगी, व्हाट इज दिस, ही विल से पेन। डेमोक्रेसी क्या मैं दिखा सकती हूँ? आई कांट शो डेमोक्रेसी, आई कैन जस्ट एक्सप्लेन। सपोज स्टूडेंट्स आर देयर, चिल्ड्रन आर देयर, एनी टाइम दे कैन कम एंड आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी। तो जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उस समय आई
answer their questions. Okay, तो रेन का डेफिनेशन तभी मिलेगा जब वी विश टू सी डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट. बूंदाबांदी हो रही है, ड्रिजल. बहुत तेज बारिश, बादल फट गया है, क्लाउड बर्स्ट. सिंपल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में. व्हेन यू सी दिस देन यू अंडरस्टैंड. आपको ऐसे कैसे समझ में आएगा कॉन्सेप्ट? देन इट दिस इज सेम थिंग इज देयर फॉर डेमोक्रेसी. क्लियर डेफिनेशन हमको तभी मिलेगा जब पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पस. अलग अलग कामों के लिए या अलग अलग चीज़ों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल होता है. वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स कॉल देमसेल्व्स डेमोक्रेसी. Democracy, all governments cannot call themselves democracy. Certain criterias are there which needs to be fulfilled. Got it? अब री बियांग, another student is saying, why do we need to work on a definition? Definition के लिए हमको इतना ऑप्शन क्यों दे रहे हैं आप? ठीक है, अब्राहम लिंकन यू सेड डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. मेघालय, नाउ दिस इज द स्टोरी फ्रॉम मेघालय. मेघालय में ऑलवेज वी रूल्ड आवरसेल्व्स and everybody has accepted it. So why do we need a change? Well, मेघालय में महाराजा हुआ करते थे, राजा होते थे उस रीजन के, और people used to respect the king a lot. So रिबियांग is saying कि सबने एक्सेप्ट किया है, तो अभी इसको चेंज करने की ये डेमोक्रेसी की क्या ज़रूरत है? वाई? Now, ma'am has to continuously answer the questions of the students. She is saying कि we need to change it. I too find this definition very beautiful. अब ये definition बहुत ही अच्छा सा definition है, but we don't know that this is the best way of defining unless we think about it ourselves. जब तक खुद नहीं सोचेंगे, जब तक खुद विटनेस नहीं करेंगे, तब तक इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया जा सकता है. We must not accept something just because it is famous. सारे लोग कह रहे हैं तो हम भी कहेंगे. No, this should not be the case. Got it? अब another student Yolanda is saying, ma'am, can I suggest something? क्या मैं कुछ बोलूँ? We don't need to look for any definition. Somewhere I have read. अभी देखो डेमोक्रेसी, what do the students know about democracy? अलग अलग बच्चों के पास डेमोक्रेसी की अलग अलग जानकारी है. एक बच्चे ने अब्राहम लिंकन का एक्सप्लेनेशन दिया, where he said कि अभी आप other day you were saying कि democracy is government of the people, for the people and by the people. Yolanda is saying कि ग्रीक में डेमोक्रेशिया मीन्स डेमोस. डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल. पीपल्स रूल, आम आदमी की सरकार. सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल. इज इट अ करेक्ट मीनिंग? तो अब देखो, लिंगदो मैम इज सेइंग दैट इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस. ये मैटर सोचने के लिए ना, ठीक है. अ वर्ड डज नॉट टाइड टू इट्स ओरिजिन. खाली ओरिजिन को लेके हम वर्ड मीनिंग नहीं समझते हैं. वी ऑलवेज सी द वर्ड इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर. प्रैक्टिकली उस वर्ड का मतलब क्या होगा, इस प्रायोरिटी होती है. एंड वेरी फ्यू पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर कंप्यूटिंग सम्स. राइटिंग होता है, डिज़ाइनिंग होता है, लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड वॉचिंग फिल्म्स. अभी तो कंप्यूटर का मीनिंग ही चेंज हो गया. कंप्यूटर नहीं है घर में तो बच्चा पढ़ाई ही नहीं कर पाएगा. गॉट इट? ये 10 साल पहले की बुक है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज़ अ बुक दैट वाज कमीशन एंड दैट वाज रिटन 10 years बैक. इसलिए लुक इट इन टू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर. उस समय कंप्यूटर इतना यूज़ 10 साल पहले हमें तो पता ही नहीं था. मुझे तो कुछ नहीं आता था. मुझे तो आज भी कुछ नहीं आता है. आई एम सो बैड एट ऑल दैट आई मीन ऑनलाइन थिंग. अक्सर फंस जाती हूँ मैं. आई हैव टू आस्क द स्टूडेंट्स. इनफैक्ट यू पीपल आर यूजिंग इट फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. यू पीपल आर स्मार्टर. आप कितनी बार टीचर्स को बताते हैं, मैम ये वाली बटन दबाइए, मैम जस्ट चेक दिस आइकन, मैम डू इट इन दिस मैनर. तो दिस इज योर नॉलेज इज मोर देन दैट. सो मैम, नाउ what we are saying is there is no shortcut to our thinking about the matter ourselves. डेमोक्रेसी बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो हम ऐसे ही पढ़ के ऐसे ही समझ. आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन दैट. और बहुत सारी चीज़ें हैं. नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन, देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट वी अंडरस्टैंड बाय अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर. और कितना सुंदर इंट्रोडक्शन है.
that the teacher is in conversation with the students are asking the question पूछते पूछते उन्होंने अब्राहम लिंकन का भी एक्सप्लेनेशन बता दिया एंड ग्रीक मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी भी बता दिया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. This can be a frequently asked question. What is the Greek meaning of democracy? So the origin of word democracy is demokratia. Greek word demos means people and kratia means rule, people's rule. Okay, so remember this explanation. Another thing, ये वाला explanation है by अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन वाला तो बहुत पहले भी आपने पढ़ा होगा. अब्राहम लिंकन वाला explanation is तो very clear. Got it, children? So here we come to the end of this video today. Next class will be again continuing the same chapter. Okay, children, thank you so much and all the best to you.